Hi kids, so this is second part of the cell injury chapter. The leftover important topics will be discussed here. Mechanisms of cell injury, adaptations of cellular growth and differentiation, accumulations and pathological classification. So the way we will be discussing cell injury is certain headings. We know that cell injury results from abnormality in one or more essential cellular components. Now what are these components that can be damaged? Mitochondrial damage, membrane damage, DNA damage, and then we'll discuss free radical injury, the oxidative stress, how are they generated, how do they affect the cells, calcium homeostasis, and ER stress, the unfolded protein response, which all we have already discussed a little bit as well, and then few examples of injury in clinical scenarios. Okay, the very first thing here is the mitochondrial damage. We know that mitochondria is the powerhouse of the cell. It produces ATP, right? Now, and ATP is needed for all the pathways of the cell. Now, mitochondria can be damaged because of calcium, in the increase of the calcium and a reactive oxygen species. These both we'll discuss later, and maybe due to oxygen deprivation like hypoxia, or maybe due to toxins. And there are certain mitochondrial disorders which are genetic and inherited solely from the mother, so that can also alter the metabolism of mitochondria. Okay, so the three major consequences of mitochondrial damage are ATP depletion, because ATP production is the major function of mitochondria. It is the powerhouse of the cell because it produces ATP, which is required for literally all the pathways in the cell metabolism that we have read in biochemistry. So ATP depletion. We'll discuss what are the other causes of ATP depletion apart from damage to mitochondria, and how does effect what are the effects of ATP depletion on the cell, how does that eventually lead to cell death or etc. We'll discuss that. And the other two consequences of mitochondrial damage is production of reactive oxygen species, and which we'll be discussing later on. And the third thing is activation of the pro-apoptotic genes, because now intrinsic pathway will be activated if the mitochondria is damaged and cytochrome C has been released. Your pro-apoptotic genes will be activating the intrinsic pathway of apoptosis. So ATP depletion, production of reactive oxygen species, and activation of intrinsic pathway of apoptosis. Now, coming to ATP depletion, this is the major cause of cell injury. It is involved in both hypoxic as well chemical toxic toxin induced injury. ATP is produced in two ways in your cell. One is oxidative phosphorylation, which occurs in your mitochondria. It requires a certain membrane potential between the inner and the outer membranes of the mitochondria, and we know that whole electron transport chain of mitochondria which is involved in it. Right. The second is glycolysis. Now, as I said, mitochondrial damage is the main cause of ATP depletion, but it can also occur if the cell is not receiving enough oxygen or nutrients because of ischemia and hypoxia. Toxin-induced ATP depletion can occur, example, cyanide. And whenever there is mitochondrial damage, there is something called as mitochondrial permeability transition pore. Basically, these are conductance channels in the mitochondrial membrane. So, these whenever this pore opens, these channels, when they open up, the mitochondrial membrane potential is not the same anymore, because anything is coming, anything is going out of the membrane, through the membrane into the mitochondria. So the specific potential that you need for your electron transport chain is not there. So oxidative phosphorylation is not happening, so progressive ATP depletion occurs, which will result in necrosis. So mitochondrial damage results in the opening of these channels, which further causes progressive ATP depletion. Now, what is the big deal about ATP? Because it is required in every pathway within your cell, right? Membrane transport, protein synthesis, lipogenesis, deacylation, reacylation reactions, which are required for phospholipid turnover. So, even 5 to 10% of depletion of ATP has many effects on the cell. Okay. Now, we'll discuss the effects of ATP on the cell. Now, effects of ATP depletion. The very first thing is sodium potassium ATPase pump is reduced. The activity of this pump is reduced because it is dependent on ATP, right? Now, I've tried to make this very simply, and if you've noticed, I've made it in points. And I would encourage you to write like this in your exams or your notes, because you will remember it also. And it indicates to the examiner that you understand the topic well enough, because you've written in clear cut points. Okay, so we don't have ATP anymore. So channels which were dependent on ATP, like sodium potassium ATPase pump, will not be working anymore. Sodium now accumulates inside the cell, and potassium concentrations are falling inside of the cell. That there is net solute gain. There, sodium is entering more inside of the cell now, and there is net solute gain.
Now remember, in general, just to when it comes to the osmosis of the cell in relation to the type of isotonic, hypertonic, or hypotonic solution it is suspended in, wherever sodium goes, that is where the water will go. So if the sodium is coming inside of the cell, it is getting accumulated, and the water is also coming, which is obviously naturally there is more solute gain. This leads to swelling of the cell. This leads to organelle swelling like ER dilatation, membrane bleb formation. Now, if you remember the key points of reversible cell injury, the very first point was hydropic change or cell swelling. This is exactly that only. And the second change was fatty change. Now, energy metabolism of the cell is altered as a result of ATP depletion, because we know that many pathways of the cell are dependent on ATP. For example, if oxygen has reduced, like in ischemia, oxidative phosphorylation has ceased to occur, so there is ATP is not being produced anymore. So, associated increase in AMP is happening. This AMP stimulates phosphorylase and phosphofructokinase activities. If you've read in your biochemistry glycolysis and glycogenolysis, these pathways, they need something to stimulate them, because they can go in either way, right? They can be glycogenolysis or glycogenosynthesis, like the production of glycogen, or it can be glycolysis, or it can be production of glucose, right? So it can go either way, and that happens because of the stimulus of ATP and AMP, right? So now there's decrease in ATP because the cell has been damaged, the mitochondria is damaged, there's no longer any ATP, oxidative phosphorylation is not occurring, and it is stimulating phosphorylase. AMP is stimulating phosphorylase and phosphofructokinase activity. Now both of these will further increase the rate of glycogenolysis and glycolysis, because now glycogen is being used, so that will be rapidly depleting. And glycolysis, now aerobic glycolysis is not happening because oxygen is reduced as a result of ischemia, so anaerobic glycolysis is happening, because of which lactic acid is accumulating, and inorganic phosphate, because pyruvate gets converted to lactate, and this reduces the intracellular pH. And we know that our certain cytosolic enzyme work in a certain level of pH, and this reduction of pH results in decreased activity of these enzymes. Now, the third effect of ATP depletion, the very first was a reduction in sodium potassium ATPase pump, or like ATP dependent pumps. The second was alteration in your cellular metabolism. The pathways are disrupted. And the third is protein synthesis is not occurring anymore. Now, if you remember the translation, protein synthesis, which are happening where mRNA gets converted to protein, the attachment of ribosomes was happening. Now, these ribosomes are getting detached from endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, and polysomes are dissociating. We needed the polysomes, remember, for protein synthesis. So now protein synthesis is reduced because of that, because synthetic apparatus is completely disrupted. This ribosomes are getting detached from RER, right? And there is and during this whole thing, protein misfolding might increase as well. Now, finishing on the damage to mitochondria, the first result was ATP depletion. The other, like I said earlier, was incomplete oxidative phosphorylation. If you remember the whole pathway of electron transport chain, you'll remember कि वहाँ पे अगर बीच में कहीं पे भी रुक जाएगी, that will result in the production of reactive oxygen species, and how they are damaging the cell, we'll be discussing it later in this video only. And then there's leakage of mitochondrial proteins because the outer membrane protein is damaged, so cytochrome C is now being released under the effect of pro-apoptotic BAX and BAK, right? So intrinsic pathway of apoptosis has already started now. Now, coming to the next part after mitochondrial damage is your membrane damage, right? So, there is selective membrane permeability loss, especially that of mitochondria, and that is a consistent feature in all forms of cell injury. But remember, in apoptosis, the integrity of cell membrane is maintained, because membrane damage happens in two ways: the integrity of membrane is lost and the function of the membrane is lost. Now, for example, in ischemic cells, this is happening because there is ATP depletion, because mitochondrial damage हो रखा है तो ATP depletion हो गया, and calcium, because increased calcium है, and that activates certain enzymes like phospholipases, तो उन्होंने phospholipids of membrane को damage कर दिया. But also directly infectious organisms like bacteria or viral proteins and complement components and physical or chemical agents भी damage कर सकते हैं cell membrane को. So various mechanisms by which a membrane is being damaged. The very first is formation of the reactive oxygen species. They are causing lipid peroxidation. The details of this we'll read later in the slides when we see generation of free radicals and how they damage various cells.
And then is your decreased phospholipid synthesis. Now this is because there is a defective mitochondrial function or hypoxia. That's why now your phospholipids are not being synthesized, because ATP is depleted, and ATP was required to produce anything, right? So phospholipids are not being synthesized. Third thing which is causing membrane damage is breakdown of the already existing phospholipids. So whenever there is severe cell injury, that will cause degradation of your phospholipids in the membrane. This happens usually because there is increase in the calcium which is in cytosol or mitochondria that activates phospholipases. These are calcium dependent phospholipases, and they damage your membrane. Now the products of, because the membrane is made of lipids, right? So these products of these membrane, these various types of lipids, they also further degrade the membrane because they have detergent like effect, or they can get inserted into the membrane, or they get exchanged with the lipids, phospholipids in the membrane. So they basically cause changes in the permeability of the membrane as well as electrophysiological alterations, because they are not the same chemicals. Now we come to fourth thing which is causing membrane damage. It is cytoskeletal abnormalities. So calcium was causing activation of many types of enzymes, and one of them is proteases, and our cytoskeleton components like myosin, actin, they are basically proteins. They are being damaged, right? And especially when the myocardial cell exacerbated by cell swelling, there occurs detachment of the cytoskeletal components from the cell membrane, and that makes the cell more prone to rupture and stretching. Now we are discussing what organelle damage is happening, and what organelles membranes are being damaged, and what is the effect. So first is your mitochondrial membrane damage. We know that the transitional pores are opening, the permeability transition pores are opening, and ATP production is being decreased, and is release of certain proteins like cytochrome C, and that is causing intrinsic pathway of apoptosis is being activated. Now the cell is going towards cell death. Then is your plasma membrane damage. We know that there is loss of osmotic balance, influx of fluids and ions, and वो cell की swelling होगी, we've read that, and then loss of cellular contents as well. Now these metabolites, when they are being released into the cytoplasm, out of the cell, because the membrane is now damaged, so there is reconstitution of ATP cannot happen, and that would lead to further stores being depleted. Next is your lysosomal membrane. Now we know that lysosome stores acid hydrolases, and they get activated in the acidic pH which already in the injured cell has. So RNases, DNases, proteases, phospholipases, glycosidases, they are damaging all the components of the cell. So this is the cell that is going toward cell death now. After mitochondrial damage and membrane damage, now we come to the third part of cell injury, which is your DNA damage. This will be discussed in your chapter of neoplasia, but just remember, whenever there is damage to the cell DNA in any way, it is P53 which gets activated. Now this damage can occur because of radiation exposure. Radiation is given to a cancer patient, or chemotherapy which is given to a cancer patient, or it can be due to drugs or ROS, or maybe just as a result of aging, DNA can be damaged. So anytime DNA is damaged, your P53 gets activated. Now what does P53 does? It stops the cell cycle. It causes cell cycle arrest at G1 phase, and it activates DNA repair mechanism कि भाई cell को ठीक कर दो. If these get repaired, let's say for most part, that is great, all is well and good. But if these fail, these DNA repair mechanisms have failed now, so P53 itself induces apoptosis, okay, by intrinsic pathway, by mitochondrial pathway. So the cell will rather choose to die than live with the cell that has DNA damage, because वो for malignant transformation हो सकती है. Now obviously अगर खुद P53 ही mutated है, तो डीएनए डैमेज को कोई रोकने वाला नहीं है, डीएनए डैमेज को कोई अरेस्ट करवाने वाला नहीं है सेल साइकिल पे, तो वो डीएनए डैमेज में न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कैंसर्स होते हैं. एंड इफ समबडी एवर आस्क्स यू व्हाट इज द मोस्ट म्यूटेटेड जीन इन कैंसर्स, दैट इज P53. इट इज सीन इन ऑलमोस्ट ऑल द कैंसर्स, द म्यूटेशन ऑफ P53. Free radical injury. Now it's time to discuss oxidative stress, which is caused by your oxygen derived free radicals. So this basically free radical damage is occurring in chemical radiation injury, ischemia, reperfusion injury, cellular aging, or even microbial killing by phagocytes can produce free reactive oxygen species, free radicals. And what are free radicals? Basically they have a single unpaired electron in their outermost orbit, and these unpaired electrons are highly reactive, and they will attack the molecules, your proteins, your lipids, your carbohydrates and nucleic acids. And that's not enough, because some of these reactions are autocatalytic, कि मतलब इन्होंने जिसको प्रोटीन को या लिपिड को जिसको अटैक किया उसको भी फ्री रेडिकल बना दिया, तो वो फर्दर औरों को प्रोपेगेट हो जाएगी वो चेन ऑफ डैमेज, राइट? बिकॉज वो भी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, वो औरों को
like lipid peroxidation works like that only. It is also an autocatalytic reaction, प्रोपगेट होती रहेगी द चेन ऑफ डैमेज. एंड नॉर्मली जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो रेस्पिरेशन है एंड एनर्जी जनरेशन. एंड नॉर्मली हमारी बॉडी उन्हें रिमूव भी कर देती है. स्कैवेंजर्स हैं वो जो हमारे नॉर्मल सिस्टम्स है, दे अलाउ कि स्टेडी स्टेट रहे, इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन में रहें कि वो डैमेज ना कॉज कर पाएँ. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इट इज़ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन या फिर डिक्रीज स्कवेंजिंग, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं या उनको कोई रिमूव करने वाले जो स्कवेंजर्स है वो इन्हें डिक्रीज नहीं कर पा रहे, तो ROS बढ़ गए हैं, एक्सेस ऑफ फ्री रेडिकल्स हो गया, तो दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. नाउ दिस कैन अकर इन सेल इंजरी, कैंसर, एजिंग और कुछ डिजेनरेटिव डिजीजेज लाइक एल्जाइमर्स में भी इसका रोल है. नाउ और ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जब फेगोसाइटोसिस हो रहा है स्पेशली बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, तब भी ये प्रोड्यूस होती हैं. जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, देन विल डिस्कस द पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, उन्हें रिमूव कैसे किया जाता है. फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. तो फर्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हो रहा है. फॉर एग्जांपल नॉर्मली जब ऑक्सीजन वाटर में भी कन्वर्ट हो रही है उस टाइम पे कुछ एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जो कि ER में होते हैं, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम्स में, लाइसोसोम्स में होते हैं. तो उस टाइम पे सम पार्शली रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन. लाइक सुपर ऑक्साइड आयन है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयन से 3 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सेकंड थिंग इज अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जैसे UV रेज, एक्स रेज वगैरह, तो ये हाइड्रोलाइज कर देती हैं वाटर को इनटू हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स. ओके, सो तब भी अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग योर फ्री रेडिकल्स. और लाइक वी डिस्कस इन एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, तो वहाँ पे एक पूरा एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है NADPH ऑक्सीडेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस. तब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं, या फिर ज़ैंथीन ऑक्सीडेसिस में भी जब सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शन नहीं हो पाती WBCs में, वो एक डिफेक्ट होता है विच प्रोड्यूसेस क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज. यू विल रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑफ इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट इज एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजेनस ड्रग्स और केमिकल्स. वो भी प्रोड्यूस, बाहर से जो आपने कुछ लिया है बॉडी में, वो भी उनकी मेटाबॉलिज्म में भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे आयरन और कॉपर है, वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे सेल्स में, वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्लासिक है फैंटन रिएक्शन. फैंटन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए Fe3 को पहले Fe2 बनना पड़ेगा एंड दैट रिएक्शन इज एनहांस्ड बाय सुपर ऑक्साइड आयन. तो जब आयरन का सोर्सेज कोई ले रहे हैं या फिर सुपर ऑक्साइड आयन है, दे मे कोऑपरेट विद ईच अदर इन ऑक्सीडेटिव सेल डैमेज. प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉर्मली ये केमिकल मीडिएटर है जो एंडोथेलियल सेल्स या माइक्रोफेजेस, न्यूरॉन्स या अदर सेल टाइप्स प्रोड्यूस करती हैं. एंड इट एक्ट्स एज अ फ्री रेडिकल एंड इट कैन गेट कन्वर्टेड टू अदर हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स लाइक परऑक्सीनाइट्राइट आयन एज वेल एज NO2 एंड NO3 नेगेटिव. डिस्कस द रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स. 3 चीज़ें हैं. कुछ हमारे एंजाइम्स है बॉडी में जो प्रॉपर हमारा फ्री रेडिकल्स कमेंजिंग सिस्टम है, वो जो 3 एंजाइम्स हैं विल डिस्कस. और एक है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स. यू मस्ट हैव हर्ड कि विटामिन E लेना चाहिए, विटामिन A, विटामिन C, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड और ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट हैं. एंटीऑक्सीडेंट डैमेज मतलब ऑक्सीडेंट इंड्यूस्ड डैमेज प्रिवेंट करते हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी प्रोड्यूस करती है जब हम लेते हैं फ्रॉम डाइट सोर्सेज. फिर है फ्री आयरन एंड कॉपर कैन कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ROS. तो उनको बॉडी दूसरे प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड रखती है. जो हमारा फ्री आयरन ऐसे घूम नहीं रहा हो तो वो ट्रांसफेरिन या फेरिन, लैक्टोफेरिन या और कॉपर सेरुलोप्लाज्मिन की फॉर्म में बॉडी में रहते हैं, ताकि वो ये जो हमारी जो रिएक्शंस हैं ROS की, उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाएँ. फिर है हमारे स्कैवेंजिंग सिस्टम के एंजाइम्स. ऑलराइट, जो 3 एंजाइम्स हैं, कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, इन तीनों का नाम याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये नीट PG तक के लेवल तक क्वेश्चन आते हैं इन पे. कैटालेज क्या है? बेसिकली पेरोक्सिसोम्स में होता है नॉर्मली. ये H2O2 को डिकम्पोज करता है इनटू ऑक्सीजन प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कैटालेज. फिर है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, बहुत सारे सेल्स में है. ये जो O2 का सुपर ऑक्साइड आयन है उसको H2O2 में कन्वर्ट करता है. और मैंगनीज SOD हो सकता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कॉपर जिंक SOD होता है जो कि साइटोप्लाज्म में हो सकता है. तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज. फिर है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज. ये हमें फ्री रेडिकल ब्रेकडाउन ये इट ब्रेक्स डाउन फ्री रेडिकल, तो उसलिए इंजरी से प्रोटेक्ट करता है. कि H2A2 के साथ अगर रिड्यूस्ड वाला जो हमारा ग्लूटाथायोन है, GSH इज रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है खुद GSSG बन के और वाटर प्रोड्यूस होता है. या फिर तो बेसिकली जो सेल में ऑक्सीडाइज्ड वर्सेस रिड्यूस्ड जो ग्लूटाथायोन है उसकी रेशो डिसाइड करती है कि सेल ऑक्सीडेटिव स्टेट में है या नहीं, और फिर दैट इंडिकेट्स कि सेल डिटॉक्सिफाई कर पाएगा ROS को या नहीं.
डैमेज कैसे कर रहे हैं बॉडी को, पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं इनके सेल पे। फर्स्ट इज लिपिड पेरोक्सीडेशन मेम्ब्रेन का, वही ऑटो कैटालिटिक चेन रिएक्शन। बेसिकली डबल बॉन्ड्स होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो कि लिपिड में हमारी मेम्ब्रेन में पड़े हैं। दे आर अटैक्ड बाय दीज फ्री रेडिकल्स स्पेशली हाइड्रोक्सिल आयंस। तो दीज इंट्रैक्शंस की वजह से पेरोक्साइड बनते हैं जो कि मतलब लिपिड और फ्री ऑक्साइड जो फ्री रेडिकल है दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो दे फॉर्म पेरोक्साइड एंड वो खुद उनके भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट में। तो दे आर देमसेल्व्स अनस्टेबल एंड रिएक्टिव एंड दे विल स्टार्ट एन ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन, प्रोपगेशन रिएक्शन, जो और भी मेम्ब्रेन डैमेज करती जाएगी। दूसरा है ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, मतलब जो हमारे अमाइनो एसिड साइड चेंज होती हैं या फिर प्रोटीन क्रॉस लिंकेज या कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन बैकबोन हो जाएगी, या फिर एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स को खराब कर देंगे, कॉन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स डिस्टर्ब, मतलब कॉन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर समटाइम्स अनफोल्डेड और मिसफोल्डेड जो प्रोटीन्स है उनकी डिग्रेडेशन, प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन इन्हांस हो रही है। लास्टली दे विल डैमेज द डीएनए। कैसे? दे विल कॉज सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स इन डीएनए, या फिर दे फॉर्म क्रॉस लिंकिंग डीएनए स्ट्रैंड्स, या दे फॉर्म अडक्ट्स। ठीक है। एंड ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड इन सेल एजिंग एंड मिलिग्नेंसी, मिलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। Coming to calcium homeostasis में जब disturbances है, how is that damaging the cell, how is that causing cell injury? So calcium we know second messenger, it acts as a second messenger in many signaling pathway. तो excess calcium is when it is released into the cytoplasm, it is an important source of cell injury. तो normally जो cytosolic free calcium की जो concentration है वो low ही रहती है as compared to extracellular, and most of the जो intracellular calcium है वो mitochondria और ER के अंदर है, cytoplasm के अंदर नहीं है। इस्कीमिया और टॉक्सिन की वजह से जो साइटोसोल में जो कैल्शियम है वो बढ़ जाता है क्योंकि वो इंटरसेलुलर स्टोर्स में से रिलीज होता है और इंक्रीज इन्फ्लक्स होता है फ्रॉम आउटसाइड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी क्या है बिकॉज ऑफ कैल्शियम? व्हेन इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर ओपन होती है, तो देयर इज फेलियर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, दैट इज़ वाई इट इज़ हार्मफुल। एंड देन इंक्रीज जो साइटोसोल में जब कैल्शियम बढ़ जाता है तो इट एक्टिवेट्स डेंजरस एंजाइम्स लाइक फॉस्फोलाइपेसेस, प्रोटीएसेस, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एटीपीएसेस। Something called as ER stress, endoplasmic reticulum stress, the unfolded protein response. तो normally जो हमारी body में chaperones है, they control the proper folding of newly synthesized proteins, and even if there are some misfolded proteins, तो वो basically proteolysis हो जाता है in proteosomes. But if however due to some reason unfolded या misfolded proteins accumulate हो रहे हैं endoplasmic reticulum में, तो number of alterations are triggered, and these alterations are called as unfolded protein response. क्या होता है? They activate signaling pathways, जिसकी वजह से production of chaperones बढ़ती है, प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन ऑफ अबनॉर्मल प्रोटीन्स बढ़ती है, एंड देयर प्रोटीन ट्रांसलेशन स्लो हो जाती है। हाउएवर अगर ये हमारा जो रिस्पॉन्स आया है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, बट इफ इट इज़ नॉट एबल टू कोप विद द एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, तो सेल को एक्टिवेट करने पड़ेंगे स्पेसिस और एपोटोसिस करवाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ER स्ट्रेस। वी हैव रेड अबाउट दिस इन द फर्स्ट वीडियो। जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है इसका रोल है एजिंग में, वायरल इन्फेक्शंस में, न्यूरोजेनेटिव डिजीजेस में, इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया में। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यू डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय मिसफोल्डेड प्रोटीन्स लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, familial hypercholesterolemia, Tay-Sachs disease, alpha-1 antitrypsin deficiency, Creutzfeldt-Jakob disease and Alzheimer's disease. I have not discussed their details, table आपका रॉबिन्स में दिया हुआ है पूरा। इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलुलर अडेप्टेशंस, ये आपका वाइवा क्वेश्चन भी है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन इट कैन बी आस्क्ड इन योर नीट पीजी एज वेल। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशंस: हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड एट्रोफी। Coming to hypertrophy, trophies means growth, hyper means increased, right? So there is an increase in the size of the cell, and for obviously organ भी का size भी बढ़ जाएगा, but the number of cells remains the same, just they are larger cells, okay? It can be pathological और physiological as well. Normally भी होती है। Normally क्या है कि जब functional demand organ की बढ़ गई, for example pregnancy में uterus की demand बढ़ रही है, मतलब uterus से body की demand बढ़ रही है, right? तो उस टाइम पे physiological hypertrophy हो रही है। फिर या फिर हार्मोन के या growth factors के रिस्पॉन्स में लाइक striatal muscles इन हार्ट या स्केलेटल मसल, ओके, दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफीज, एंड बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलुलर प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज योर हाइपरप्लेजिया, हेयर द नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीज्ड, मतलब इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ओके। हाइपरप्लेजिया सिर्फ उन्हीं सेल्स में हो सकता है ऑब्वियसली जो केपेबल ऑफ डिवाइडिंग है, एंड इट कैन बी अंडर द इफेक्ट ऑफ सम ग्रोथ फैक्टर ड्रिवन प्रोलिफरेशन ऑफ मेच्योर सेल्स, मतलब ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड मेच्योर सेल्स हैं और उसमें ग्रोथ फैक्टर की वजह से डिवीजन ज़्यादा हो रही है, या फिर स्टेम सेल्स हैं उनका आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, एंड रिमेंबर हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया कैन अकर टुगेदर एज वेल। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की
एग्जाम्पल क्या है कि द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन और ग्रोथ फैक्टर्स ड्यूरिंग सेवरल सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग प्यूबर्टी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट प्रोलिफरेट्स, दैट इज नॉर्मल. एंड फिर लिवर रीजनरेशन इन डोनर्स. सो जब हिपैटिक ट्रांसप्लांट होता है तो जो डोनर्स अपने हेपेटेक्टमी का करते हैं उनके लिवर की और थोड़ा सा देते हैं, एंड वी नो कि लिवर हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू रीजनरेट. ओके, एंड देन इज मैरो हाइपोप्लेजिया इन रिस्पॉन्स टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सेल्स. सो नॉर्मली अगर आरबीसी या डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ये सब कहाँ से बन के आ रहे हैं? नॉर्मली हमारा जो हेमेटोपोइसिस है हमारा मैरो के हो रहा है ना, बोन मैरो कर रही है. तो लेट्स से एनीमिया हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में मतलब आरबीसी सबके कम हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में मैरो हाइपोप्लेजिया होगा. फिर आपका पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया मतलब एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ हार्मोन्स हो रहा है ऑन टारगेट सेल्स लाइक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. देयर समथिंग कॉल्ड एज AUB या AMB, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीड या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड. तो वो है कि एबनॉर्मल हार्मोन इंड्यूस्ड हाइपरप्लेजिया हो रहा है, एंड यूजुअली इसकी ट्रीटमेंट हिस्टेरेक्टमी होती है, एंड वेरियस कॉजेज भी होती हैं इसकी. यू विल रीड अबाउट दिस इन लेटर इन गाइनी, बट बेसिकली इसके लिए हिस्टेरेक्टमी ही करते हैं. फिर है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, रिस्पॉन्स टू हार्मोन स्टिमुलेशन बाय एंड्रोजन. सो ओल्डर मेल्स में स्पेशली इफ दे आर स्मोकर्स तो उसमें उनमें BPH हो जाता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. ये आपका स्पॉटर भी हो सकता है एग्जाम में. एंड सो इसमें भी बेसिकली क्या कहते हैं, TURP के थ्रू दे रिमूव चिप्स ऑफ द प्रोस्टेट. तो सारा प्रोस्टेट पूरा का पूरा निकाल देते हैं. द प्रॉब्लम इज कि हाइपरप्लेजिया क्यों निकाल रहे हैं ये ऑर्गन्स? बिकॉज ऑल्दो इट इज़ नॉट कैंसर बट इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल जिसमें कैंसरस प्रोलिफरेशन हो सकती है फॉर श्योर. जिसमें हाइपरप्लेजिया होता है पैथोलॉजिकल, पेपिलोमा वायरस के जैसे सर्टेन वायरल इन्फेक्शन, पेपिलोमा वायरसेस की जो इन्फेक्शन है वो वॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कुछ म्यूकोजल लीजन जिनमें हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम होता है. एट्रोफी नाम में ही है, ए मीन्स एब्सेंस या डेफिशिएंसी, फिर ट्रोफी है ग्रोथ, मतलब साइज ऑफ द सेल और इवन द नंबर ऑफ द सेल हैज़ डिक्रीज्ड. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन का साइज भी रिड्यूस हो गया. तो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है ये जब आपके एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं दे अंडरगो एट्रोफी, दे आर नॉट नो लॉन्गर नीडेड इन द एडल्ट. सो फीटल डेवलपमेंट में उनकी एट्रोफी हो जाती है, एग्जाम्पल नोटोकॉर्ड और थायोग्लोसल डक्ट. फिर है कि जब आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, द साइज ऑफ द यूट्रस हैज़ टू कम टू नॉर्मल. सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल एट्रोफी. पैथोलॉजिकल एट्रोफी की काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, ये याद रखना. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट इज डिसयूज एट्रोफी, नाम में ही है डिसयूज. लेट्स से पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है और कास्ट है और पेशेंट या फिर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस है, वो उसको बेड रेस्ट पे है कंप्लीटली, तो दे आर नॉट यूजिंग देयर लिम्स, राइट. तो उनकी वजह से डिक्रीज वर्कलोड की वजह से डिसयूज एट्रोफी, बिकॉज हर ऑर्गन का हर लिम्ब का एक फंक्शन है, राइट. तो डिक्रीज वर्कलोड की वजह से डिसयूज एट्रोफी. फिर है डीनर्वेशन एट्रोफी. तो हमारी जो नर्व्स हैं, जब नर्व डैमेज हो गया, अब नर्व डैमेज की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, वायरल इन्फेक्शन, ट्यूमर, इडियोपैथिक, बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, लाइक बेल्स पॉल्सी फॉर एग्जांपल, फेशियल पॉल्सी की जो फेशियल नर्व का डैमेज. सो मेनी कॉजेज ऑफ नर्व डैमेज. सो वट एवर द नर्व डैमेज है, तो जिसमें नर्व जो जिस मसल को सप्लाई कर रही थी उनकी एट्रोफी हो जाएगी बिकॉज द नर्व इज बिन डैमेज नाउ. नेक्स्ट है योर डिमिनिश ब्लड सप्लाई. इस्कीमिया की वजह से किसी जगह पे ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो इसकी एग्जांपल है एक सेनाइल एट्रोफी. तो एडल्ट लाइक ओल्डर एडल्ट्स में जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो उनमें ब्रेन का साइज थोड़ा कम हो जाता है. हम बोलते नहीं हैं लोग 17-12 गए, तो वो दैट इज़ बेसिकली द ब्रेन की प्रोग्रेसिव एट्रोफी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं रहा. और ब्लड क्यों नहीं पहुँच रहा, इस्कीमिया धीरे धीरे स्लो क्यों हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया था और ब्लड वेसल्स का. फिर है आपकी इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन. सो लेट्स से पेशेंट भूखमरी वाले एरियाज़ में अगर कोई रह रहा है, प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा, मेरेस्मस और क्वेशोर्कर. तो आफ्टर एडिपोज स्टोर्स यूज़ हो गए बॉडी के, तो आफ्टर दैट जब खाना ही नहीं है उनके पास, फैट यूज़ हो गई बॉडी की सारी एनर्जी के लिए, तो अब कुछ तो चाहिए, तो बॉडी स्केलेटल मसल की प्रोटीन्स को यूज़ करना शुरू कर देती है. तो वो उसकी वजह से भी मसल वेस्टिंग मिलती है, कैचेक्सिया मिलता है. क्या एग्जांपल्स हैं एट्रोफी की? लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन. तो एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन मेनोपॉज के दौरान फीमेल्स में कम हो गया एस्ट्रोजन, तो जो ऑर्गन्स एस्ट्रोजन डिपेंडेंट थे, लगे एंडोमेट्रियम या वेजाइनल एपिथेलियम या ब्रेस्ट का टिश्यू, तो वो उनकी एट्रोफी हो जाती है फिजियोलॉजिकल. फिर प्रेशर एट्रोफी, लेट्स से कहीं के पे जो ट्यूमर है तो आसपास के एरियाज़ को वो प्रेशर डालेगा, तो उसकी वजह से उनमें एट्रोफी हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा उनका ब्लड सप्लाई. फिर है सेल डेथ बाय एपोटोसिस, बिकॉज ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्योंकि हार्मोन विड्रॉल हो गया टू ऑफ दी एंडोक्राइन ऑर्गन जो कि हार्मोन सेंसिटिव थे. तो जब वो हार्मोन नहीं है तो उनमें सेल डेथ हो गया बाय एपोटोसिस. नाउ मेटाप्लेजिया, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज इन विच वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप बिकम्स अनदर सेल टाइप. दो चीज़ें इसमें याद रखनी है. मेटाप्लेजिया इज़ रिवर्सिबल फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड चेंज, डिफरेंशिएटेड सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल टाइप. इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल स्क्वेमस था और वो सडनली अब कॉलमनर बन गया, या फिर कॉलमनर था और सडनली स्क्वेमस बन गया. जो डिफरेंशिएटेड है वो कभी किसी और में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा.
स्टेम सेल्स जिनसे ये सेल बनी थी डिफरेंशिएटेड अपनी लोकल साइट वाली, अब वो स्टेम सेल लोकल साइट की बजाय कुछ और तरह का एपिथेलियम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू इंजरियस स्टिमुलाई, ठीक है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में। मोस्ट कॉमन जो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल है कॉलमनर टू स्क्वेमस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि इन रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक इरिटेशन इन हैबिचुअल क्रॉनिक स्मोकर्स, क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम चाहिए और वो इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस अब स्क्वेमस होने लगा है। पर ऐसा नहीं है कि वो कॉलमनर वाले सेल्स जो एग्जिस्टिंग थे ऑलरेडी वो स्क्वेमस बन गए, जो स्टेम सेल्स कॉलमनर बनाते थे वो अब स्क्वेमस बनाने लगे हैं, इवन दो इट इज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। और कुछ एग्जांपल्स हैं, और एक क्लासिक एग्जांपल है बेरेट्स ईसोफेगस, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के रिफ्लेक्स की वजह से जो स्क्वेमस एपिथेलियम था अब वो कॉलमनर हो गया। फिर एक्सक्रीटरी डक्ट है जहाँ जहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, बाइल डक्ट्स, वहाँ पे स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो सकता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो सकता है। फिर जब मसल के अंदर हेमरेज हुआ है तो बोन फॉर्मेशन हो जाती है मसल में, तो कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया भी हो सकता है। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया की जब बस प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ डबल वेज स्वॉर्ड, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल चेंज है। यहीं पे फिर जो मिलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहीं पे फिर यहाँ पे जहाँ पे मेटाप्लेजिया हुआ है वहाँ पे ही मिलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्क है। तो मैकेनिज्म क्या है? द रिजल्ट ऑफ रीप्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स दैट आर नोन टू एग्जिस्ट इन नॉर्मल टिश्यूज और ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यूज। सो इट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल टाइप। वो तो अपना ही जैसा था वो वैसा ही रहेगा, बट अब जो नए सेल्स आ रहे हैं वो अब डिफरेंट तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स, another important topic, but this is like a brief topic. You'll never get a theory question on it. It's like a viva question. Maybe sometimes you'll get it, but it's important to know. नीट पीजी क्वेश्चन में आ सकते हैं इसके, from that perspective it is important. So accumulation of abnormal amounts of various substances can be harmless or there may be injury. The substances can accumulate in cytoplasm, within organelles, or in the nucleus. So there are four main pathways of intracellular accumulations. First is that normally secreted substances are not transported properly. For classic example is fatty change in liver. फिर है कि abnormal endogenous substances की accumulation हो रही है, like mutated forms of alpha-1 antitrypsin. Then एक metabolite due to inherited enzyme deficiencies की वजह से accumulate हो रहा है, like glycogen storage disorders, और deposition of accumulation of some substance जिसकी ना तो हमें हमारी बॉडी उसको डिग्रेड कर सकती है ना कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकती है। एग्जाम्पल है कार्बन या सिलिका पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स। सो द क्लासिक एग्जाम्पल इज लिपिड। हर तरह के लिपिड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीटियोसिस, दैट इज योर फैटी चेंज, मतलब एक्यूमुलेशन हुई है अबनॉर्मल लेवल की ट्राइग्लिसराइड्स की विद इन योर सेल्स। तो दिस फैटी चेंज इज मोस्ट कॉमनली सीन इन लिवर बिकॉज डिटॉक्सिडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो हमारा फैटी एसिड की पूरी फैट्स की पूरी मेटाबॉलिज्म में लिवर मोस्ट इन कॉमन इन्वॉल्व होता है। और बाकी लिवर के अलावा हार्ट, मसल्स और किडनी में भी एक्यूमुलेट हो सकती है फैट। कॉजेज यूजली होती है फैटी चेंज की टॉक्सिन्स या प्रोटीन मालन्यूट्रिशन या डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी या रेनॉक्सिया। डेवलप्ड नेशंस में मोस्ट कॉमन कॉज है सिग्निफिकेंट फैटी चेंज इन द लिवर की अल्कोहलिक अब्यूज या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, NAFLD बोलते हैं, जो कि डायबिटीज और ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है, यूजली फीमेल्स में होता है NAFLD। देन कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स कैन, मतलब वैसे भी नो कोलेस्ट्रॉल की जो मेटाबॉलिज्म है पूरी, आपने यू मस्ट हैव रेड इन बायोकेमिस्ट्री, तो इट व्हेन दैट मेटाबॉलिज्म इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली तब इट कैन बिकॉज ऑफ फैटी डाइट और समथिंग लाइक दैट इट कैन एक्यूमुलेट। एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि हार्ट में वी नो कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ही एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो वो बेसिकली आयोटा में लिपिड वैक्यूल्स, मैक्रोफेजेस, स्मूथ मसल सेल सारे मिलके वो अथेरोमा बना लेते हैं। तो दैट उसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल होता है, काफ़ी बड़ा साइज होता है उसमें। फिर है ज़ैंथोमास, बेसिकली हेरिडिटरी हाइपरलिपिडेमिक स्टेट्स में फेमिलियर हाइपरलिपिडीमियाज, यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस आल्सो इन बायोकेमिस्ट्री। तो वो सॉफ्ट टिश्यू में, स्किन में कहीं कहीं ना ऐसे छोटे छोटे से सब कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टेंडन्स में या फिर ट्यूमरस मासेस, ट्यूमर जैसे मासेस होते हैं, तो बेसिकली ज़ैंथोमास होता है आईज में, टेंडन्स में, ये ज़ैंथोमास हो जाते हैं। फिर कोलेस्ट्रोलोसिस है, बेसिक ये है गॉल ब्लैडर की लॉमिना प्रक्रिया में फोकली कोलेस्ट्रॉल लिडर मैक्रोफेजेस का एक्यूमुलेट होना, दैट इज कोलेस्ट्रोलोसिस। फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स तो हैं ही, उनमें कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन हो सकता है, जैसे नीमन पिक डिजीज है टाइप सी, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग एंजाइम की म्यूटेशन होती है, तो उसमें भी हो जाता है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स बेसिकली राउंड इओसिनोफिलिक ड्रॉपलेट्स की तरह दिखती हैं, साइटोप्लाज्म में हो सकती हैं या अपनी वैक्यूल्स बना सकती हैं।
क्लासिक जो एग्जांपल है, मतलब इसकी 4-5 एग्जांपल्स हैं कि प्रोटीन कब कहाँ एक्यूमुलेट होती है। मल्टीपल मायलोमा, देयर इज अ डिसऑर्डर कॉल्ड मल्टीपल मायलोमा। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत बनती हैं। तो जो इतनी एक्सेस में बनती हैं, और वो क्या करती हैं कि इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स बना लेती हैं सेल के अंदर, दे आर कॉल्ड रसल बॉडीज। ठीक है। और ये है, फिर सेकंड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में या प्रोटीनूरिया की कोई और कॉजेज में, जब बहुत सारा प्रोटीन निकल रहा है बॉडी से, तब थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट भी हो जाता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एज पिंक हाइलिन ड्रॉपलेट्स। फिर है मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स, हो सकती है ट्रांसपोर्ट और सिक्रीशन में कुछ गड़बड़ है, जब ईआर से गोल्जी की तरफ अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन इन प्रोटीन के जो बनाने वाली जो जीन है वो जाती है, तो उसकी मिसफोल्डिंग हो जाती है। तो उसमें पिस जीन का कुछ म्यूटेशन होता है, तो उसमें बेसिकली जो अब डेफिशिएंट एंजाइम, जो हमारा एंजाइम है उसकी डेफिशिएंट ही हो गई, क्योंकि अब नॉर्मल मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रही है और नॉर्मल बनी ही नहीं, तो इसलिए डेफिशिएंसी है। तो वो जो abnormal accumulation है वो हाइलिन ग्लोब्यूल्स में जैसे मिलती है। यू रीड अबाउट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ लंग्स। फिर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आपके एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज में अल्कोहलिक हाइलीन इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स हो सकते हैं हेपेटोसाइट्स में, और वो एक्चुअली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं। फिर न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स होते हैं, एनएफटीज जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा ब्रेन में, एल्जाइमर्स में मिलते हैं। ठीक है, उनमें न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स। फिर एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, उसकी कॉजेज एमिलोडोसिस भी हो सकती है। हाइलिन चेंज मीन्स ग्लासी या होमोजेनस पिंकी सी अपीयरेंस दी गई है सेल को बिकॉज ऑफ सम ऑल्टरेशन। और ये जो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, प्रोटीन्स की वजह से इंटरसेलुलर हाइलिन डिपोजिशन दिख सकता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन डिपोजिशन कोलेजनाइजेशन की वजह से दिख सकता है, या फिर स्कार्स, मतलब जो स्कार्स हैं उनमें हाइलिनाइजेशन हो जाती है। लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेज में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज में, आर्ट्रियल वेस्कुलर वॉल्स में हाइलिनाइजेशन मिल जाती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स में मिल रहा है, आपको एक्यूमुलेट होता है। फिर डायबिटीज मेलाइटस में जो ग्लाइकोजन है वो एक्यूमुलेट हो सकता है रीनल ट्यूब्यूल सेल्स में। स्टेन करते हैं पास के साथ या फिर कार्माइन के साथ भी कर सकते हैं, तो उसको रोज टू वायलेट कलर मिलता है। एंड साइड नॉर्मल एच एंड डी पे क्लियर वैक्यूल्स दिखते हैं ग्लाइकोजन के। ना पिगमेंट डिपोजिशन कैन बी एक्सोजेनस पिगमेंट, या बॉडी की खुद की इंटरनल इंडोजेनस पिगमेंट्स भी डिपॉजिट हो सकती हैं। एक्सोजेनस जैसे कार्बन का, सॉरी, क्लासिक एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कार्बन, जो कि कोल डस्ट, तो वो एंथ्रोपोसिस कॉज कर सकती है। फिर देयर समथिंग कॉल्ड एज कोल माइनर्स न्यूमोकोनियोसिस, तो उसमें एग्रीगेट्स बन जाते हैं कार्बन डक्स की, कोल माइनर्स की लंग्स में, एम्फाइसीमा वगैरह भी हो सकता है। टैटूइंग इज अ फॉर्म ऑफ लोकलाइज्ड एक्सोजेनस पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। फिर एंडोजेनस पिगमेंट क्लासिक जो इसकी है, लिपोफिशिएंट नॉर्मल पिगमेंट है, कोई हार्म नहीं करती हमारी बॉडी को। वियर एंड टियर पिगमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली इट मीन्स कि फ्री रेडिकल इंजरी हुई है, जो कि एजिंग के साथ नॉर्मली होती है, एंड लिपिड पर ऑक्सीडेशन, और येलो ब्राउन होती है, फाइनली ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होती है। ठीक है, और एजिंग पेशेंट्स में मिल सकती है, फिर सीवियर मालन्यूट्रिशन के पेशेंट्स में, या कचक्सिया के पेशेंट, कैंसर कचक्सिया के पेशेंट्स में मिल सकती है। फिर दूसरी एंडोजेनस पिगमेंट है, एंडोजेनस पिगमेंट है मेलानिन, जो कि हमारी ओनली एंडोजेनस ब्राउन ब्लैक पिगमेंट है। फिर है होमोजेंटिसेट, जो इल्कैप्टोन्यूरिया में डिपॉजिट हो जाए, ब्लैक कलर की पिगमेंट होती है, स्किन कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज में ये डिपॉजिट हो जाती है, और डिजीज को बोलते हैं ओक्रोनोसिस, मतलब इल्कैप्टोन्यूरिया के अंदर ही पिगमेंट डिपोजिशन होना, उसे बोलते हैं ओक्रोनोसिस। हीमोसिड्रिन बेसिकली हीम रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड है, स्टोरेज फॉर्म ही है एक तरीके से आयरन की। ब्राउन, गोल्डन येलो टू ब्राउन होती है, हीमोग्लोबिन से डिराइव्ड है। लोकल या एक्सेस सिस्टेमिक कॉज हो सकता है। लोकली बेसिकली हेमरेज हुआ है, तो उसमें वहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है कि कॉमन ब्रूज हुआ है, तो वहाँ पे हीमोसिड्रिन डिपोजिशन हो जाती है। बाकी सिस्टेमिकली हीमोसिड्रोसिस, देयर इज अ डिसऑर्डर कॉल्ड हीमोक्रोमेटोसिस, यू रीड अबाउट दिस इन लिवर इन डिटेल। तो वहाँ पे इनबॉर्न एंड ऑफ मेटाबॉलिज्म है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है डाइटरी आयरन की, तो वहाँ पे ये बेसिकली आयरन ओवरलोड हो रहा है। फिर हीमोलिटिक एनीमियाज में हो रहा है। फिर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, तो आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो हीमोक्रोमेटोसिस हो जाता है उस पेशेंट में। Another important topic for you guys is pathological calcification. It can be of two types, dystrophic calcification and metastatic. Remember, dystrophic means dead tissues. It occurs in dead tissues. Calcium metabolism is normal, serum level of calcium is normal. It is occurring in dead tissues, necrotic tissues में हो रही है. Metastatic calcification is tissues are normal,
It's just that calcium metabolism is abnormal because of some secondary cause. It can be due to a paraneoplastic syndrome, जो पीटीएच पैराथॉर्मोन रिलीज कर रहा है, या विटामिन डी डेफिशिएंसी में कोई डिसऑर्डर है, या रीनल फेलियर हुआ है. तो वट एवर रीजन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज डिफेक्टिव, बट टिश्यूज आर नॉर्मल. ओके. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन निक्रोटिक टिश्यूज में कॉग्निटिव गैशियस लिक्विफेक्टिव या फैट निक्रोसिस में हो सकता है. एग्जांपल्स हैं एथरोमास ऑफ एडवांस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, एजिंग और डैमेज्ड हार्ट वाल्व्स कैल्सिफाई हो जाती हैं. तो कैसी दिखती है? वाइट फाइन ग्रैन्यूल्स या क्लम्प्स दिखते हैं ऑफ ग्रिटी डिपॉजिट्स, या फिर कभी कभी ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड भी कैल्सिफाई हो जाती हैं. Now there's something called as samoma bodies. These are lamellated configurations. वो outer layers पे deposition होती रहती है in response to calcium deposition. Serum calcium dystrophic calcification में normal होता है, याद रखना. तो causes क्या है samoma bodies की? Papillary thyroid carcinoma, या फिर papillary serous carcinoma of ovary या meningiomas. काफ़ी सारी कॉजेज होती हैं. पेपिलरी कार्सिनोमास आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक. जिस भी कार्सिनोमा में पेपिले मिलते हैं वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि पेपिले की टिप तक आपका ब्लड वेसल नहीं जाता, ट्यूमर के टिप तक जाता नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि नेक्रोसिस हो जाता है, तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाती है और फिर समोमा बॉडीज बन जाती हैं. ये जो गोल गोल लेफ्ट साइड में भी जो ब्लू ब्लू बॉटम साइड पे जो दिख रही है वो भी कैल्शियम डिपोजिशन है और समोमा बॉडीज है. ठीक है. मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन नॉर्मल टिश्यूज में होती है, पर हाइपरकैल्सीमिया हो रखा है, सीरम कैल्शियम लेवल्स आर हाई. क्यों? मेन 4 प्रिंसिपल कॉजेज 4 हैं. पैराथायराइड हार्मोन का आना. अब पैराथायराइड हार्मोन या तो पैराथायराइड के ट्यूमर से आ रहा है, या फिर एक्टोपिक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में पीटीएचआरपी बन रहा है. तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स इफ यू हैव रेड, इसमें पीटीएचआरपी बनाते हैं कुछ ट्यूमर्स, जो कि पैराथॉर्मोन लाइक पैराथॉर्मोन रिलेटेड प्रोटीन है, तो उसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है. सेकंड है कि बोन टिश्यू की रिजॉर्प्शन हो रही है, जो कि प्राइमरी ट्यूमर्स हो सकते हैं बोन के, या फिर बोन में मेटास्टेसिस हो सकता है, या फिर एक्सेलरेटेड बोन टर्नओवर हो सकता है पेजेट डिजीज में, या फिर इमोबिलाइजेशन की वजह से. थर्ड कॉज है विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स. हमें पता है कि विटामिन डी और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म क्लोजली लिंक्ड है, तो विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन साइकिडोसिस में भी हो सकता है, या फिर हाइपरकैल्सीमिया ऑफ इन्फेंसी इडियोपैथिकली विलियम सिंड्रोम. फोर्थ क्लासिक एग्जांपल है रीनल फेलियर, क्योंकि उसमें फॉस्फेट रिटेंशन होता है, एक्सक्रीट नहीं होता, तो उसमें सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म हो जाती है, और फिर वो कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं. लेस कॉमन कॉज है एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन या मिल्क एल्कली सिंड्रोम. बाकी मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन थ्रू आउट द बॉडी कहीं भी हो सकती है. क्लासिक एग्जांपल है गैस्ट्रिक म्यूकोजा, किडनीज, लंग्स, सिस्टेमिक आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स. That was all about this topic. I've covered the most important topics of cell injury. Let me know if you understood them well enough, or if you like this video, uh, comment down below. And also, if there's a certain topic that you want me to cover, let me know that as well. Thank you for watching.